ताकि वो अपनी नीश में अपनी फील्ड में एक लीडर बनकर उभर सके। Digital Hoka is authored by Mr. Shivam Malviya. Think before you click and pause before you click. To supporting authors and bringing impactful, relevant books to readers. So first of all, मैं introduce करना चाहूँगी master जो है इसके behind, Mr. Tarun Sharma sir and Mr. Dhruv Singh sir. So please give them a huge round of applause, guys. These are the visionaries behind this all work. So today, Pen and Paper Publication proudly presents the launch of the book titled Digital Dhoka. Digital Dhoka is a practical guide that explains modern digital and financial frauds in simple language. Seniors and youth helps readers understand how cyber criminals operate, provides awareness to protect money, identity, and digital safety. Focuses on real-life risks faced in today's digital India. So, Digital Hoka is authored by Mr. Shivam Malviya. Mr. Shivam Malviya is a cybersecurity professional with over a decade of experience in protecting organizations across multiple countries. Worked in more than 11 countries in cyber prevention, contributing to global initiatives. He has led security operations across 5 continents and worked with global organizations handling large-scale cyber investigation and digital threat prevention. Currently, he serves as the head of security operation at Cloudiness Technologies with prevention leadership roles in internationally recognized companies. Through this book, he brings his real-world experience to help everybody's life and digitally safe prevention. So we will now proceed to our facilitation ceremony. So I would like to introduce Shivam Malviya sir to come on the stage, and also Mr. Dhruv sir and Tarun sir. The reason behind launching this book is specifically related to the cyber crimes which is happening all around India. And if you talk about data from 2020 and 2025, it's more than 23 lakhs cyber cases has been reported. And if you talk about recovery rate, it is zero, which is 0.17%. So it is important that, think before you click and pause before you pay. It's very much important. Right? Thank you very much. Hello everyone, I am Anjali from PNP Publications. So today we are going to interview the personality behind the book Digital Dhoka, Mr. Shivam Malviya. Thank you. Shivam ji is a passionate entrepreneur, social innovator and youth mentor. सर का मेन गोल है कि वो स्टूडेंट्स को, यंग प्रोफेशनल्स को गाइड करे ताकि वो अपनी नीश में, अपनी फील्ड में एक लीडर बनकर उभर सके। सो अब मैं चाहूँगी कि शिवम जी कुछ अपने बारे में बताएं और हमें बताएं कि उन्हें वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में आकर कैसा लग रहा है। Thank you very much for giving a brief introduction about myself, right? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बुक फेयर में आके, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव रिटन एनी बुक स्पेसिफिकली फॉर साइबर अवेयरनेस,
और the motive behind this book was very simple, because someone in India just lost 50,000 rupees in cybercrime, right? Since we are talking here, right, within 15 minutes someone else is going to lose near about 1 lakh, 2 lakhs, and more than crores also in in a single click. So the reason, the motive behind this book was very simple, that cyber से ही सुरक्षा है और सुरक्षा से ही cyber है, right? So it's very much also important that think before you click, pause before you pay. सर हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है स्कैम के साथ, एज इन क्या आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है? वैसे सच्ची बताऊँ तो एक बार मैं फंसते बच गया था, राइट? सो नया स्कैम स्टार्ट हुआ था कस्टम्स का, कि आपको फ़ोन आता है और आपसे कहते हैं कि आपका कस्टम्स का जो है कोरियर आया हुआ है और उसके अंदर ड्रग्स मिले हैं, और तो मैं आपका कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। बट बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट, राइट, सो आई थॉट कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, मैं मान नहीं सकता कि कोई कस्टम से ऑर्डर भी आया होगा। तो उन्होंने अपना फ़ोन काट दिया, राइट? सो yeah, these days even like educated people are getting into trap of cyber crimes. Yeah. सर अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में साइबर स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न यही है कि वी आर इंडिया, राइट, वी आर द second largest digital economy these days, right? And what I think that as we are transforming towards digital economy, so there's an example saying that we have Ferrari, but we don't know how to drive them, right? So it's very much important that we have to be digitally secure. We have to follow the best practices and what to do, what not to do. अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया में इतना साइबर क्राइम क्यों आ रहा है। पहली बात ये है कि अगर हम लोग बात करें 20% इंडियंस आर ओनली साइबर मैच्योर एज पर डेटा, राइट। बाकी जो हमारा इंडिया है इट्स बेसिकली एग्रीकल्चरल कंट्री। अब आप किसान के पास जाओगे, उसको आप फ़ोन करके फ्रॉड करोगे कि पीएम किसान योजना से आपका रिफ़ंड आया है, तो उसको क्या पता कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग साइबर मैच्योर है ही नहीं। हमारा पेमेंट्स तो बहुत हो रहे हैं, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट, आई वुड से दैट UPI ट्रांजेक्शन 471 millions, right? We are, if you talk about internet active users, it is 978 million active users in India. So how, that's a huge number, right? So we have to be be mature in terms of how we are actually doing like digital payments. ओके सो सर समटाइम्स हम साइबर क्राइम को इनविजिबल क्राइम भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सब बहुत नॉर्मल लगता है कि सब कुछ नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है उसमें कि फ्रॉड हो रहा है या हम फंस रहे हैं इस चीज़ में। तो उसके पीछे का रीज़न भी मैं जानना चाहूँगी कि ये हमें स्टार्टिंग में इतना ईजी क्यों लगता है और जब हो जाता है तो फिर हमें शौक लगता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि चोर आता था और घर के अंदर सामान उठा के ले जाता था। साइबर क्राइम एक इनविजिबल क्राइम इसलिए है कि आप समझो कि ना वो आप उनसे मिलते हो, ना आपके उनसे बात करते हो, केवल आपके वो मोबाइल में रहता है, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, आपके SMS के थ्रू। तो एक इनविजिबल क्राइम है ये। तो बेहतर ये है कि हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए, तभी इसको कहा जाता है इनविजिबल क्राइम, राइट? एंड दे प्ले विथ योर इमोशंस। So psychologically, cybercrime is not, I would say that technically, primarily, it is more psychologically. सो सर अभी आपने बताया कि सो द बिगेस्ट गेम इज़ इमोशंस, राइट? सो फियर और अर्जेंसी हमारी डिसीजन मेकिंग को इतनी आसानी से हाईजैक कैसे कर लेते हैं? So I would say there is a concept, right? Concept ये है कि जब हमारे घर में आग लग जाती है तो हम गूगल में सर्च नहीं करेंगे कि कैसे उसको बुझाना है, दैट्स फियर, राइट? हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि वो आपको डराते हैं। डराते क्या हैं कि मैं CBI से बात कर रहा हूँ,
दैट्स अ केस ऑफ डिजिटल अरेस्ट। या फिर अर्जेंसी दिखाते हैं कि 5,000 इन्वेस्ट करो 50,000 मिलेंगे। अब जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास घर में खाने को नहीं है, वो तो कहेगा कहीं से कि चलो यार मिल रहा है तो कर लेते हैं। और जो डिजिटली इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, तो इसलिए फियर और एजेंसी पे कहता है। और जब आप फियर दिखाते हो ना, तो हमारे ब्रेन का रेशनल पार्ट बंद हो जाता है। मजबूरी, राइट, आई विल प्रॉब्ली से दैट मजबूरी इज़ द ओनली टर्म दैट डर से जो है इंसान जो है ये सब कदम उठा लेता है और फंस जाता है। सो सर, यूपीआई सेफ्टी को लेके इंडिया में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? यूपीआई सेफ्टी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम पैसा पे करते हैं किसी भी वेंडर को या किसी को भी हम पैसा पे करते हैं, तो हम लोग पिन यूज़ करते हैं। बस साइबर क्रिमिनल क्या है, कहते हैं कि अगर किसी को वो पैसा भेजते हैं या उसको देते हैं तो उसके लिए भी पिन यूज़ करते हैं। ये गलत है। साइबर क्रिमिनल्स क्या कहते हैं कि वो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहते हैं कि आप इसमें पिन एंटर कर दीजिए, राइट। बट कभी आप पैसा देने वाले को और लेने वाले को, केवल वाले को पिन कभी नहीं यूज़ करना पड़ता है, केवल जो भेजता है उसको पिन यूज़ करना पड़ता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है यूपीआई ट्रांजैक्शंस में। ओके, सो सर, जो एआई वॉइस है और डीप फेक्स, एआई वॉइस क्लोन, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा और कितना रियल थ्रेट बन चुका है? लेट्स इमेजिन समथिंग कि अभी आपके पास कॉल आए और कहे कि आपका फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, राइट। एंड लेट मी टेल यू, इट ओनली टेक्स 4 minutes to create a AI voice and based on 95% accuracy. तो these deepfakes, AI clone voices, right? So अगर आपके पास फ़ोन आया कि आपका फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, कोई आपसे पैसे मांगे और उसकी वॉइस सेम होगी, तो आप डर जाओगे, right? So cyber crime is these scammers, right? This is most they do not hack your phone, they hack your life, they hack your emotions, right? That's why in cybercrime it is said that it is not what you know, but what you can do with what you know, right? You can have a hopeless end or you can have an endless hope. Choice is yours. Exactly. Okay. सो सर, आधार, पैन या केवाईसी डिटेल्स लीक होने के बाद लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकते हैं? आधार अगर लीक हुआ तो समझ लीजिए कि आपका डिजिटल डीएनए लीक हो गया है। जो स्कैमर्स होते हैं, आप लोग कहते हैं कि आधार लीक हो गया तो क्या हो गया, बट आप इस बात को समझो, अगर आपका आधार लीक हो गया तो जो स्कैमर्स हैं वो आपके नाम पे फेक लोन्स ले सकते हैं, आपके नाम पे शेल कंपनीज ओपन कर सकते हैं, राइट। आपका डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट अगर आधार लीक हुआ तो क्या सब कुछ लीक हो गया, आपका डिजिटल डीएनए लीक हो गया, आपके बैंक अकाउंट्स लीक हो गए, आपके सारे जो यूपीआई ऐप्स हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, दे आर लीक्ड। बिकॉज आजकल हर जगह आधार यूज़ हो रहा है, हर जगह आधार के नाम पे ओटीपी आता है, आप वेरीफाई करते हो। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो सर, अभी नेक्स्ट आई थिंक वी शुड डिस्कस अबाउट द एज ग्रुप, बिकॉज हर एज ग्रुप का इंसान जो है वो डिजिटल स्कैम का, साइबर क्राइम का हिस्सा बनता ही बनता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, इवन जो एजुकेटेड यंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी इस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है। तो उसके बारे में आप कुछ बताइएगा। चलिए इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं यूथ पे, और then we are going to move into educated people and then we are going to come on senior citizens, right? यूथ की बात करते हैं। यूथ बोलता है कि मैं टेक सेवी हूँ, मुझे तो कोई उल्लू नहीं बना सकता है। हाउएवर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो स्कैम्स होते हैं वो यूथ के संग होते हैं। जब यूथ निकलता है तो वो कहता है कि मुझे जॉब चाहिए। तो आजकल ऐसे ऐसे जॉब्स के फ्रॉड आए हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स, उनको पता होता नहीं है, पैसे चाहिए होते हैं जब आप कोई भी एजुकेशन करके निकलते हो, तो यूथ उसमें फंस जाता है। तब वो टैक्स सेवी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो डर में रहता है कि यार हम पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा। अब बात करते हैं पढ़े लिखों का, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, राइट, इंजीनियर्स,
ये 100% फंसते हैं. There was a recent case in Delhi that, you know, like RBI retired officer got trapped 3.6 crores in a digital arrest scam. Why? Because उनको डर लगता है कि यार हम तो इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, देयर इज़ अ ईगो प्रॉब्लम कि हम कैसे बताएंगे जाके. शेम होगा मेरे संग बताएंगे. सेल्फ ऑब्सेस्ड कि यार मुझे तो कोई नहीं मार सकता, मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल बच सकता हूँ इससे, लेकिन वही फंसते हैं. नाउ लेट्स कम टू सीनियर सिटीजन्स. सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा दे आर इनटू साइबर फ्रॉड्स. उनको कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज ये जनरेशन जो है इट्स ऑल डिजिटल, राइट. UPI पेमेंट्स, QR स्कैन कोड्स, दे आर अनअवेयर ऑफ दैट. उनको कोई फ़ोन करके कहेगा कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो डर जाएंगे, तो पैसे मान भी जाएंगे और वो पैसे भी दे देंगे, राइट. So it's very much important that we should give proper education to senior citizens in terms of cyber frauds. What is right, what is wrong. So, sir, अभी जैसे किसी के भी साथ स्कैम हो जाता है, राइट. अभी जैसे हमने बात करी कि चाहे यंग प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, तो वो बहुत जल्दी स्कैम में फंस जाते हैं. बट अब मैं जानना चाहूँगी कि एक बार इस स्कैम में फंसने के बाद इंसान सबसे डैमेजिंग गलती क्या करता है? इंसान सबसे डैमेजिंग गलती ये करता है कि वो नहीं बताता है, किसी को नहीं बताता है. वो समझता था मेरे संग स्कैम कभी हुआ नहीं है, हो भी नहीं सकता है, कैसे हो गया ये. शेम, फियर, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इसी में वो गलती कर जाता है. जो गोल्डन आवर पीरियड होता है वो होता है 60 मिनट्स का. 60 मिनट्स के अंदर अगर आपने रिपोर्ट किया तो देयर इज़ अ चांस ऑफ रिकवरी, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकवरी. बिकॉज स्कैमर बैठा है कंबोडिया में, स्कैम हो रहा है नागपुर में, पैसा जा रहा है दुबई में, तो आप कैसे पकड़ोगे? 60 मिनट्स इज़ द गोल्डन आवर पीरियड. जब भी कोई किसी के स्कैम होता है वो अपने सारे एविडेंस इकट्ठा करे, 1930 पे फ़ोन करे. वी डू हैव अ गवर्नमेंट फ़ोन नंबर विच इज़ 1930, और दे कैन लॉग अ कंप्लेंट इनटू cybercrime.gov.in where they can create their application. They can provide all the evidence. जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी दोनों के अकाउंट फ्रीज़ हो जाएंगे, जहाँ से पैसा कटा है और जहाँ से पैसा गया है, राइट. जब एक बार फ्रीज़ हो जाएगा देन यू कैन प्रॉब्ली रेज अ FIR एंड देन योर मनी कैन गेट बैक. अभी के टाइम पे ऐसा कौन सा एक चेंज है जो इंसान अपने अंदर ला सकता है, या एक कौन सा ऐसा बिहेवियर एस्पेक्ट हम बोल सकते हैं कि अगर वो ऐसा अडैप्ट कर ले इन चीज़ों को, या फिर वो ऐसा चेंज कर ले अपने अंदर, तो वो इस चीज़ से बच सकता है? That's a very good question, right? I will probably say that it's very much important that you have to think. अगर कोई आपसे OTP मांगता है तो वो फ्रॉड है. अगर कोई आपसे फ़ोन करके बोलता है कि मैं CBI से बात कर रहा हूँ, वो फ्रॉड है. क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिशियल्स, राइट, आपको फ़ोन नहीं करता है. कोई भी बैंक का एम्प्लॉय आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे OTP दे दो. तो सोचो, समझो और फिर डिसीजन लो. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, राइट, थिंक बिफोर यू क्लिक, पॉज बिफोर यू पे. ये बहुत ज़रूरी है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो साइबर क्राइम होता है ना, वो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल, राइट. दे प्ले विथ योर इमोशंस. दे डोंट हैक योर फ़ोन, दे हैक योर इमोशंस. तो यूट्यूब पे जो ये सब जितने भी पेड प्रमोशंस आते हैं, तो पहली बात तो 80% चीज़ें जो है ना वो सही नहीं होती है इंटरनेट पे. चाहे आप यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब चीज़ पेड होती है. तो अपना दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए. कभी कोई आपसे कहे कि 5,000 दो और 50,000 इन्वेस्टमेंट करो, तो ये फ्रॉड है. कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है. कोई आपको फ़ोन करके मैनिपुलेट करे कि फ़लाने का एक्सीडेंट हो गया है, ये बीमार हैं, यहाँ पैसा सबमिट करना है, सब झूठ है. तो साइकोलॉजिकली हमें मैच्योर बनना पड़ेगा, हमें ग्रीड से हटना पड़ेगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कैम आपको तुरंत पैसा नहीं कमाता है. कोई नहीं देगा तुरंत पैसा कमा के आपको. तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले अपना सोचें, कोई भी फ़ोन आने से पहले सोचें, थिंक.
घबराएं मत, सोचें क्या ये जो फ़ोन कर रहा है क्या ये सही है, ये मुझे डरा रहा है, या ये कोई अर्जेंट बात मुझसे कहलाना चाह रहा है। इन चीज़ों को सोचें। यूट्यूब में चीज़ें चल रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 100% करेक्ट हैं। अपनी खुद का दिमाग लगाएं, तब आपको पता चलेगा कि सही और गलत में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तभी मैं बोलता हूँ कि साइबर क्राइम, यू कैन हैव अ होपलेस एंड और यू कैन हैव अ एंडलेस होप। चॉइस इज योर्स। Thank you so much, sir, for answering all these questions. काफ़ी डाउट्स, काफ़ी चीज़ें हमारे क्लियर हो चुकी होंगी, बट स्टिल अभी मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस में से अगर कोई आपसे कुछ पूछना चाहे, क्योंकि उनके भी काफ़ी सवाल होंगे, सो एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन टू शिवम जी? हाँ शिवम जी, थैंक यू। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हमने इत्तेफाक से उतना रुपया जमा कर दिया, फिर उसके बाद मैं सॉरी गलती हो गई, आपको 5001 रुपीज़ जमा कर दीजिए। फिर मैंने वो भी कर दिया। उसे करते करते 30,000 मेरे चले गए। तो मुझे ये समझ में आता कि मैं इसकी कंप्लेंट करूँ तो कहाँ करूँ। तो अभी तो किसी अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर फ्रॉड होता है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए। तो मुझे चाहती ये भी एक पॉइंट आपको बताना चाहिए कि कंप्लेंट कहाँ होनी चाहिए और इससे क्या होता है। जब भी फ्रॉड होता है तो वो करे क्या। सबसे पहले तो बात ये है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा। तभी ये हमने बुक लिखी है डिजिटल धोखा। आप डिजिटल धोखा को पढ़ने के बाद आई एम 100% श्योर दैट वी आर 140 billion people, right? Indian population, right? So my goal is pretty simple, to make a cyber awareness around across India. और जब तक आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा कि आप कैसे बच सकते हो, आप कैसे साइबर मैच्योर हो सकते हो, राइट? तो दिस इज द बुक, राइट, व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, डिजिटल धोखा, राइट? जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे हम साइबर फ्रॉड से बचें। आज आपकी फैमिली में कोई ना कोई जरूर साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ होगा, राइट? तो आप इस बुक के माध्यम से अपनी जिंदगियां बचा सकते हो, क्योंकि हर इंसान पैसा बहुत मेहनत से कमाता है, और पैसा तो मेहनत से कमाता है लेकिन 30 सेकंड में पूरा पैसा लुटा देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, 72 ईयर्स का एक बुजुर्ग आदमी जिसकी रिटायरमेंट की पेंशन आती थी, 12 लाख रुपए उसके अकाउंट से कट गए। उसने रोते रोते एक बच्चे की तरह मुझे फोन किया और कहा कि एक फोन आया और मुझे बोला था मैं CBI से बात कर रहा हूँ, और उसका पूरा पैसा 12 लाख रुपए चला गया। तो आप ये समझिए कि ये साइबर क्राइम जो है ये इमोशनली कितना ब्रेकडाउन कर देती है इंसान को ही नहीं, पूरी फैमिली को। तो डिजिटल धोखा आपको बुक बताएगी कि कैसे आप बचें। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज और लिखी होगी कि सरकार कैसे मदद कर रही है, लेकिन सरकार ऐसे मदद करेगी कि आप 1930 में फोन करें जब भी आपके संग फ्रॉड हो, और 1930 फोन करने के बाद अपनी पूरी जानकारी उसको दें कि कैसे हुआ, क्या ट्रांजैक्शन थे, वो आपकी मदद करेगी। मैंने पॉडकास्ट में अपने यही बोला कि बात करते समय कि आपके पास 60 मिनट्स हैं, और टाइम बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि जहाँ से फ्रॉड हुआ है और जहाँ से आपके पैसे कटे हैं वो फिर पैसा कहाँ चले जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। फोन से नाम पूछा, कुछ बैंक डिटेल्स पूछे, वो बेचारी इजी उन्होंने दे दिया। उसके बाद उनका पूरा फोन हैक कर दिया। उसके बाद मेरी मिलने वाली थी, उनसे मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आप सीधे जाइए एयरटेल के उसमें शॉप में और जाके अपना नंबर बंद कराइए तुरंत। उनके घर से एयरटेल शॉप बहुत दूर थी, इतनी देर में तो उनके काफी रुपये निकले। क्या और कोई रास्ता नहीं है कि तुरंत जैसे मेरा फोन हैक हो और मैं किसी दूसरे फोन से पता कर सकूँ या कुछ करवा सकूँ जो मेरे रुपये में मिले। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हमें तुरंत नहीं जा सकते। तो बुजुर्ग कैसे जाते हैं, बेटे का इंतजार करती, बेटा आता तब जाते हैं, तो उतने देर में तुम निकल गए। मुझे पहले बुक लॉन्च करनी चाहिए थी डिजिटल धोखा, ताकि वो इन सब चीज़ों से बच सकते थे।
कि उन्होंने जहाँ से उनका फ़ोन आया और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनके मोबाइल पे कॉल फॉरवर्डिंग कर दी गई थी, तो कोई भी नंबर उनको डायल करता रहा तो उनकी कॉल फॉरवर्डिंग स्कैमर के पास आती थी। तो पहली सबसे बड़ी बात थी कि अगर एयरटेल का ऑफिस बहुत दूर था तो उनको 1930 पे फ़ोन करना चाहिए था। अगर दूसरे फ़ोन नंबर से अपने बेटे से कहते या अपने बहू से कहते या कोई उनसे कहते, तो या फिर अपने पड़ोसी से बोलते कि फ़ोन करके 1930 पे कंप्लेन करे तो बचा जा सकता था। हुआ एक के साथ है सर, फोन उठाते हैं रुपया और 1 लाख रुपये। एआई का ज़माना है। अभी हम लोग एआई क्लोनिंग वॉइस के बारे में बात कर रहे थे, तो वी हैव टू बी साइबर हाइजीन। अपनी आवाज़, अपनी रील्स जो भी हम बना रहे हैं फेसबुक पे, उनको अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं तो आप डेंजर में हैं। कौन आपकी फ़ोटो को डीफेक कर दे आपको पता नहीं, कौन आपकी आवाज़ से आपके घर वालों को फ़ोन कर दे आपको पता नहीं। तो ये सिनेरियो जो आप बता रही हैं ये ऐसे ही हुआ होगा। ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये पिछले 1 महीने से उसको परेशान कर रहे होंगे, उसके पास मैसेजेस आते होंगे, जब उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली तब उसको फ़ोन किया होगा, तब उसने हाँ बोला होगा, पैसे कट गए होंगे। तो इसलिए जैसे ही ये सब चीज़ें उनके संग हो तो 1930 पे फ़ोन करें। और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो ये हमारी बुक जो लॉन्च हो रही है डिजिटल धोखा, उसको पढ़ें। सुरक्षा केवल आपकी जागरूकता से ही है। जितना जागरूक रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आने वाले समय में और चीज़ें वर्स होने वाली है। साइबर फ्रॉड एक कोरोना की तरह है जिसके कई सारे वेरिएंट आते जाएंगे। जैसे डिजिटल अरेस्ट अभी आया था, इन्वेस्टमेंट स्कैम आए थे, क्रिप्टो फ्रॉड आया था। पैसे का लालच इंसान को लॉस करा देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि लालची ना बने और अपनी सूझबूझ से काम लें। स्कैम चल रहा है, एक स्कैमर हमारे पास फ़ोन करता है सिस्टर की आवाज़ में। तो हम तो ये मान रहे हैं कि हमारे सिस्टर जो है कि भैया आपको पैसे के ट्रांजेक्शन खोली है, कुछ इस तरह का एक्सीडेंट है, कुछ भी है, तो हम कैसे वो समझेंगे कि फोन उसका ही है या कोई हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। क्योंकि देखा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है स्कैमर लोग जो है वॉइस बना के और उस तरह के स्कैम करते हैं। तो उसके बारे में क्या हमको प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या हमको उसको पकड़ लेंगे कि आवाज़ में कोई बात करता है तो ज़रूरी है कि अपने अंदर कोई एक ऐसा कोड वर्ड में बात करना सीखें कि पता लगे कि जो है कि हाँ ये मेरी बहन है कि नहीं। सबसे पहली चीज़, अगर वो कहती है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ या मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ज़रूरी है कि आप उसको फ़ोन को बात कर लें, उसके बाद दोबारा उसको फ़ोन मिलाएं। अपनी बहन से कंफर्म करें कि तुमने ही फ़ोन किया था कि नहीं, तो चीज़ों को पता चल पाएगा कि क्या है। फ़ोन में किड्स गेमिंग बहुत खेलते हैं, वो गेम में OTPs वगैरह अटैच होते हैं। क्या पेरेंट्स करें, लाइक आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? लेकिन डिजिटली इमेच्योर हैं, उनको पता नहीं है कि मोबाइल में गेम करते समय या OTP देना नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि मेरे पास एक केस था, मुझे अभी भी याद है कि बच्ची को फ़ोन आया और बोला कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है, OTP दो, पैसे सबमिट करने हैं। बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो डर गया। 10-12 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि जो है कि ये साइबर फ्रॉड क्या होता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। माता पिता से कहना ये अनिवार्य है कि वो अपने बच्चों को साइबर मैच्योर बनाएं, उनको बताएं कि जैसे बचपन हम लोग बताते नहीं थे कि अनजान लोगों से खाना नहीं खाना है, अनजान लोगों से टॉफ़ी अगर वो दें तो उन टॉफ़ी को लेना नहीं है। तो ऐसे बच्चों को बताएं कि कोई भी फ़ोन करके कुछ भी बोले तो OTP नहीं देना है, डरना नहीं है। either through mobile or through laptop. So for a common person, all of us are using through
how to safeguard their laptop or mobile from getting caught into such circumstances. And cyber specialists need to use this. So that your apps are updated, your OS is updated, whatever softwares you are utilizing, right, those are updated. This is the first thing. Whenever you receive any email, right, do not click on it, right, without knowing it. This is I would probably say that. Make sure that you are using a proper antivirus solution for your systems, even for your Android phones, right, and your operating systems, right, your Windows devices. That's what I would probably like to recommend. Thank you. काफ़ी कंफ्यूज है आजकल और एक मैसेज भी चलता है कि अगर कोई कॉल आया और उन्होंने उसको पिक किया तो उनका अकाउंट बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और ये मिथ है कि क्या है आप इस पर कुछ अलर्ट करिए और काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन इसके लिए कंसर्न है इसलिए वो कॉल पिक ही नहीं करते हैं अगर किसी का नंबर सेव नहीं है तो क्या उनको ऐसे करना चाहिए या फिर उसका क्या अल्टरनेटिव है सबको पता हो तो पहले हम लोग यूटिलाइज करते थे ट्रू कॉलर किसी का फ़ोन आता रहा तो पता लग जाता था लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि ट्रू कॉलर का जो डेटा सेंटर है वो स्वीडन में है जितना भी डेटा अपना है ना तो वो सारा आप जो भी फ़ोन में बात करते हो किसको मिलाते हो सारा डेटा स्वीडन की कंपनी के पास रहता है वो किसी को भेज देते हैं वो चाइना को भेज देते हैं हम लोग को पता भी नहीं लगता है जो भी आपके पास प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं ये डेटा सेल करके आते हैं कभी आपके पास कुछ भी आ रहा है कभी आपने सोचा कि आप रात में अपने घर वालों से बात कर रहे हैं कि मुझे ना ये शूज़ पसंद है और सवेरे उठो तो आपके उसी के ऐड्स आने लगते हैं ये कैसे होता है क्योंकि हम लोग साइबर मैच्योर नहीं हैं कभी भी सोएं तो अपना इंटरनेट ऑफ करके सोएं चला जाता है तो वो कैसे होता है हाउ टू प्रिवेंट इट पैसे कट गए तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं किसी का भी फ़ोन आने से पैसे एकदम से नहीं कट जाते हैं कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा तो ये मैं तो कहूँगा कि ये एक इसको आप बेहतर समझिए कि फ़ोन आता है और पैसा कट जाता है ऐसा पॉसिबल नहीं है उसने ज़रूर कहीं ना कहीं क्लिक किया होगा कहीं ना कहीं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किया होगा या OTP शेयर किया होगा उसको डराया धमका के OTP उससे लिया होगा या उसने कहीं इन्वेस्ट किया होगा या उसका आधार लीक हो गया होगा उसको पता नहीं होगा उसका पैन कार्ड लीक हो गया होगा इससे उसको पैसे करते हैं हमारा जो आधार का डेटा है ना वो लीक है आपके नाम पे कितने सिम चल रहे होंगे ये आपको भी नहीं पता होगा आप इसलिए मैं कहता हूँ कि साइबर हाइजीन कितनी ज़रूरी है आप कहीं पे भी प्रिंट आउट अपना निकलाने जाते होंगे या फोटो कॉपी निकलाने जाते होंगे तो आपने अपना आधार दिया और जो वेंडर है उसने प्रिंट आउट निकाला थोड़ा सा आधार खराब निकल गया आप कहते हो भैया यार ये तो गलत निकला इसको चेंज करो तो आपने अपना जो है जो प्रिंट आउट है वो वहीं छोड़ दिया जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उसकी रेकी करते हैं वो स्टॉक वो उठा के जाके नया सिम ले लेते हैं अब ऐसे ही सिम शॉपिंग हो जाता है अब आपको बचना कैसे है इस पर ध्यान देते हैं सिम शॉपिंग एक ऐसी टेक्निक है कि पता भी नहीं चलेगा कि आपके OTP कहाँ जा रहे हैं आपकी कॉल कहाँ जा रही है अभी रिसेंट में परसों नरसों की बात थी मेरे पास फ़ोन आया था एक बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि हमने अपना फ़ोन कहीं पे हमने क्लिक कर दिया था उसका फ़ोन आया था कि कोरियर लेना है और उसने जो कोरियर वाला था उसने कहा कि #64# मिलाइए तो आपके ना कोरियर का OTP हमारे पास आ जाएगा और बुजुर्ग आपको क्या पता है क्या होता है उन्होंने दे दिया अब उनसे प्रॉब्लम क्या हुई प्रॉब्लम हुई कि उनकी जितनी कॉल थी वो दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड हो गई और उनके OTPs आते गए तो सबसे पहली बात है कि अगर किसी का कॉल आए ये सब चीज़ें अगर मांग रहा है तो ये फ्रॉड है और किसी का भी सिम शॉपिंग ऐसी नहीं होती है कहीं ना कहीं आपका डेटा ज़रूर लीक हुआ होगा इसलिए सिम शॉपिंग हो रही है आपके संग इसीलिए सिम क्लोनिंग हो रही है आपके संग तो इसके लिए सतर्क रहे और इसीलिए ये बुक भी हमने लिखी है डिजिटल धोखा जैसे ऐसे डिजिटली मैच्योर हम लोग हो रहे हैं इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड गो अहेड एंड रीड दिस बुक ताकि हम लोग 140 करोड़ लोग हैं तो हम लोग को पता लगेगा कि जब आप ये बुक पढ़ के ख़त्म करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या पाया और आप क्या खो रहे थे you want to publish the book about digital धोखा
तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे आसपास और मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इवन आई एम ऑल्सो लाइक इतनी सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, इतनी सारी अवेयरनेस होते हुए भी हो जाता है, राइट। अब ये तो हम इस बुक से प्रिवेंट कर सकते हैं कि इतने नंबर पे कॉल कर 931920 पे या फिर 1 घंटे के अंदर एक्शन लेगा। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड्स हो रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे थॉट्स के साथ है। हम सोचते कैसे हैं, हम सोच क्या रहे हैं, मैंने यही क्यों सोचा, राइट। उसको कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता है, या तो कोई न्यूज़ आर्टिकल होगा, या तो कोई वो पॉडकास्ट हो सकता है, या तो कोई पेड पॉडकास्ट हो सकता है। सपोज करिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आई विल गो टू गूगल और यूट्यूब, वहाँ पे पेड पॉडकास्ट होता है, वो बोलते हैं कि ये कर लो तुरंत आपको पैसा हो जाएगा, राइट। तो सवाल ये है कि किस पे भरोसा करें, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं नहीं सोच रहा हूँ, राइट। मैं बोला था कि जो साइबर क्राइम होता है ना, वो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल, राइट। दे प्ले विद योर इमोशंस, दे डोंट हैक योर फोन, दे हैक योर इमोशंस। तो यूट्यूब पे जो ये सब चीज़ें भी पेड प्रमोशंस आते हैं, तो पहली बात तो 80% चीज़ें जो है ना वो सही नहीं होती है इंटरनेट पे, चाहे आप यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब चीज़ पेड होती है। तो अपना दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कोई आपसे कहे कि 5,000 दो और 50,000 इन्वेस्टमेंट करो, तो ये फ्रॉड है। कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है। कोई आपको फ़ोन करके मैनिपुलेट करे कि फलाने का एक्सीडेंट हो गया है, ये बीमार है, यहाँ पैसा सबमिट करना है, सब झूठ है। तो साइकोलॉजिकली हमें मैच्योर बनना पड़ेगा, हमें ग्रीड से हटना पड़ेगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कैम आपको तुरंत पैसा नहीं कमाता है, कोई नहीं देगा तुरंत पैसा कमा के आपको। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले अपना सोचें, कोई भी फोन आने से पहले सोचें, ठीक, घबराएं मत, सोचें क्या ये जो फोन कर रहा है क्या ये सही है, ये मुझे डरा रहा है, या ये कोई अर्जेंट बात मुझसे कहलाना चाह रहा है। इन चीज़ों को सोचें। यूट्यूब में चीज़ें चल रही हैं, जरूरी नहीं कि वो 100% करेक्ट है। अपनी खुद का दिमाग लगाएं, तब आपको पता चलेगा कि सही और गलत में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी मैं बोलता हूँ कि साइबर क्राइम, यू कैन हैव अ होपलेस एंड और यू कैन हैव अ एंडलेस होप। चॉइस इज योर्स। It can make you or it can break you. Cyber crime is not all about money. It's all about identity stealing, and different platforms use WhatsApp as a business अपने ग्रुप्स बनाते हैं। बेसिकली हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। इस तरह से बेसिकली ऑटो डाउनलोड आप हम उस पर कैसे बच सकते हैं? बेसिकली जहाँ भी गलत कर होता है, ये सब इन सबसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बच सकते हैं। अभी हाल ही में मेरे जो दोस्त है उसके भाई के संग ऐसे ही कुछ फ्रॉड हुआ था कि व्हाट्सएप ग्रुप में उसको इन्वेस्टमेंट स्कैम का झांसा दिया गया, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में 500 लोग थे और 500 में से 400 लोग फ्रॉड थे, सारी फेक प्रोफाइल्स थी उसको। और वो फेक प्रोफाइल बनकर ही सब रिव्यूज़ डालते थे कि यार मैंने तो इतनी इन्वेस्ट की और मुझे इतना पैसा मिल गया। तो ये साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके ले गए और उनके संग फ्रॉड हो गया। ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉड ऑनलाइन हो। अब फ्रॉड, साइबर फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि आपको बैंक में भेजेंगे और आरटीजीएस आपसे कराएंगे कि आप आरटीजीएस आके करो, वो आपको इतना साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर देंगे। ये हुआ है। अब ऑनलाइन फ्रॉड नहीं हो रहे हैं, अब लोग जाके एनएफटी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं बैंक में। और जो ग्रुप्स की बात आपने किया है कि कोई भी ग्रुप में अगर आपको ऐड करता है तो सबसे पहले जाने वेरीफाई करें किसने ऐड किया है, क्या ये लेजिट सोर्स था एडिशन का या नहीं, अवेयर है। मैं हमेशा ये बात बोलता चले आ रहा हूँ कि जागरूकता से ही सुरक्षा है। जब तक आप जागरूक रहेंगे आपके संग कभी भी साइबर फ्रॉड नहीं होगा। दिमाग यूटिलाइज करिए, सही और गलत क्या है, कौन से ग्रुप को आपको ऐड किया जा रहा है। अब हम एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हमारी क्या होती है कि हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्हाट्सएप मैसेज भेजिए उसको तुरंत क्लिक करके खोल लेंगे, कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजिए उसमें मालवेयर होगा, तुरंत क्लिक करके खोल लेंगे उसको। समझिए चीजें, जमाना बदल रहा है।
पहले जो चोर था वो आपके घर में घुस के चोरी करता था, आज चोर इनविजिबल है, आपको पता ही नहीं है कि दुनिया के कौन से कोने में वो आपको मैसेज भेज रहा है, आपको फोन कर रहा है। तो जागरूक है। थैंक यू। Thank you so much, sir, and thanks to our audience. So, sir, all the best for Thank your you. work, and I hope कि आगे आप और भी बुक्स लेकर आएंगे और भी इस चीज़ के बारे में बताएंगे. And at the end, I would also say जागरूकता ही सुरक्षा है. Thank you. Thank you, sir.